नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या चेता सततां यो मां स्मराति नित्यसा तस्याहं सुलभा परथा नित्या युक्तस्य योगिना। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. तो जो इंसान कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना भगवान को हमेशा याद करते हैं वो इजीली भगवान को अटेंड भी कर लेते हैं, मतलब प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली डिवोशनल सर्विस में, कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज पे अगर आप हर वक्त सोचते रहते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में और उसी चीज को सोचते रहो तो इजीली उसको प्राप्त करना मतलब हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। दिस वर्स स्पेशली डिस्क्राइब्स द फाइनल डेस्टिनेशन अटेन्ड बाय द अनअलॉयड डिवोटीज हु सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन भक्ति योगा. Previous verses have mentioned 4 different kinds of devotees: the distressed, the inquisitive, those who seek material gain, and the speculative philosophers. Different processes of liberation have also been described: Karma Yoga, Jnana Yoga, and Hatha Yoga. The principles of these yoga systems have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma or hatha. As indicated by the word ananya cheta, in pure bhakti yoga the devotee desires nothing but Krishna. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahma Jyoti or salvation or liberation from material entanglement. A pure devotee does not desire anything. In Chaitanya Charitamrita, the pure devotee is called Niskama, which means that he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. Whereas a Jnana Yogi, Karma Yogi or Hatha Yogi has his own self-interests, a perfect devotee has no desire other than to please the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to him, he is easy to attain. तो जो इंसान कृष्ण को मतलब बहुत हृदय से चाहता है, वो बस कृष्ण से एक होना चाहता है। उसको कभी ये नहीं रहता कि उसको मटेरियल चीज़ों से दूर रहना है या फिर उसको प्रमोशन मतलब अच्छे स्वर्ग में जाना है या ये चाहिए, वो कुछ सोचता ही नहीं। बस सोचता है कि कृष्ण के साथ में मैं एक हो जाऊँ, फिर अच्छा बुरा सब वो समझ लेगा, मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ सोचता ही नहीं है। ठीक है, सो a pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features. Krishna has various plenary expansions and incarnations such as Rama and Nrisimha, and a devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendental forms of the Supreme Lord. Such a devotee meets with none of the problems that plague the practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and pure and easy to perform. One can begin simply by chanting Hare Krishna. The Lord is merciful to all, but as we all already explained, He is especially inclined towards those who always serve Him without deviation. The Lord सबको एक ही नज़र से देखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो, आप सभी को इक्वल नज़र से देखते हो। मान लो कोई आपको आके बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ देता है या अच्छी बातें बोलता है या आपका प्रेज करता है, आपको मन से अच्छा लगेगा ना, आप उसके तरफ थोड़ी इंक्लाइंड हो जाओगे ना। सिमिलरली अलग से बायसनेस कुछ नहीं है, ये नेचुरल है। सो वही हमारा ह्यूमन नेचर जो आता है वो उस ईश्वर से ही आता है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द डिवाइन सोल, सो डिवाइन एनर्जी। तो हमें वही चीज़ हमारे अंदर जो है उनके अंदर भी वही वाली फीलिंग है। सो the Lord helps such devotees in various ways. As stated in the Vedas, Yam avaisa vranuti tena labhyas tasyaisa atma vivarnute tanum swam. One who is fully surrendered and engaged in the devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as He is. And as stated in Bhagavad Gita, Dadami buddhi yogam tam, the Lord gives such a devotee sufficient intelligence so that ultimately the devotee can attain Him and in His spiritual kingdom.
The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out his service wherever, anywhere, and at any time. Some say that the devotee should remain in holy places like Vrindavan or some holy town where the Lord lived, but a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavana by his devotional service. It was Sri Advaitya who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavana. मतलब जहाँ भगवान वहाँ स्वर्ग. बहुत सारे लोग ना मैं देखती हूँ, मैं कभी भी वृंदावन पे जाने के लिए मेरे को कोई वो फीलिंग नहीं आती. मुझे लगता है भगवान तो हर कण में है. मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे वो है, इस फोन में है, इस बुक में है. हर मैं इस तरीके से ही देखती हूँ. मेरा नजरिया ऐसा ही है बचपन से. मैं मूर्तियों में भगवान को नहीं ढूंढती. मैं कहीं जगहों पे जाके भगवान को महसूस नहीं करती. मैं क्योंकि हर वक्त भगवान को महसूस करती हूँ ना, मुझे उस जगह में और मेरे घर में और मेरे अंदर में और किसी और जगह में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता है. मुझे हर वक्त एक ही जैसा फीलिंग लगता है कि भगवान मेरे साथ ही है. मुझे अभी भी लग रहा है भगवान मेरे पास ही बैठे हुए हैं. मेरे को देख ही रहे हैं मैं जो कर रही हूँ. मतलब आई फील इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. मेरे को ये वाला चीज़ कभी खिंचाव महसूस नहीं होता. मेरे को वृंदावन जाना है, मेरे को वो दिखावा लगता है मेरे हिसाब से. आई डोंट नो, अदर पीपल माइट फील, आई वोंट जज देम. दिखावा मैं अगर करूँगी तो मेरे लिए वो दिखावा हो जाएगा और बाकी किसी का फीलिंग आ सकता है. बट आई डोंट फील एनीथिंग स्पेशल या डिफरेंट. कुछ वृंदावन या कहीं पे भी कुछ अलग नहीं लगता. सिमिलरली यहाँ पे जो बोला गया है कि जो जहाँ भक्त वहाँ भगवान, जहाँ भक्त का श्रद्धा वहाँ भगवान की प्रेजेंस. तो वृंदावन में जाके कहीं करने की जरूरत नहीं. यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ है कि आप जहाँ पे उनको बुला रहे हो वही स्थान वृंदावन बन सकता है आपकी भक्ति से, आपके श्रद्धा से. तो उस पर मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा. As indicated by the words Satatam and Nityasa, which means always, regularly, or every day, a pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. These are qualifications of the pure devotee for whom the Lord is most easily attainable. Bhakti yoga is the system that the Gita recommends above all others. Generally, the bhakti yogis are engaged in 5 different ways. Santa Bhakta, engaged in devotional service in neutrality. Dasya Bhakta, engaged in devotional service as servant. Sakhya Bhakta, engaged as a friend. Vatsalya Bhakta, engaged as a parent. Madhurya Bhakta, engaged as a conjugal lover of the Supreme Lord. In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord. And so for him, the Lord is easily attained. A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment. And similarly, the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. This is the great blessing of Krishna consciousness process of chanting the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हर वक्त कुछ भी चीज़ हो जाए, आपको हर वक्त कृष्ण की चैंटिंग करनी चाहिए. हर वक्त अपने, अगर आपका कोई और रिलीजन है तो उसमें कोई ना कोई चैंटिंग होगी. किसी फॉर्म से आप बस ऑलमाइटी से जुड़े रहो, प्रेयर्स करो, चीज़ों को एक डिवोशनल चीज़ के अंदर खुद को जुड़ा करके रखो. जिस तरीके से आपको लगे उस तरीके से करो, बट करो. जितना ज़्यादा चैंटिंग करते हो, मुझे जैसे जिन्होंने मुझे ये माला बैग गिफ्ट किया था, उन्होंने, मतलब ये तो गिफ्ट में नहीं है, मैंने खरीदा है, बट इसके अंदर वाला माला और उसका बैग अलग है. तो जिन्होंने गिफ्ट किया था उन्होंने ही मुझे अचानक बोलने लग गए कि सिर्फ जाप करने से कुछ नहीं होता, बस वो अच्छे से करना होता है. ये वो बहुत कुछ बोल रही थी. मेरा वो था कि आप मुझे गिफ्ट करते या ना करते, मेरे को वो चीज़ लेना ही था. तो मैं आपसे दान में मिल गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अगर दान में नहीं भी मिलता तो मैं कहीं ना कहीं से वो परचेज़ कर ही लेती, क्योंकि मुझे ये चीज़ लेने का उस टाइम पे एक अर्ज आया था. जैसे बुलावा, जैसे जिन लोगों को वृंदावन जाने की बुलावा आता है, उस तरीके से मुझे माला जापने का बुलावा आया था. अंदर से एक फीलिंग आई थी. मुझे वैसे यूट्यूब वीडियोस अपने से मिल रहे थे. मैं सोची थी कि कैसे, जैसे शाम्भवी दी का मुझे वीडियो मिला था कि वो जाप करी, तो उसके बाद मुझे सिमिलर काइंड, मैं उस वीडियो को देखी, उसके बाद मेरे को सिमिलर बहुत सारे वीडियोज़ दिखे. एंड उसके बाद मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं उस टाइम में हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी, धोखे से गुजर रही थी. मुझे बहुत बड़ा सा एक धोखा मिला था और उससे मैं उभरना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस, मैं खुद से बहुत, सेल्फ लव जो बोला गया ना, मैं एक्चुअल में सेल्फ लव करती हूँ. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना पसंद करती हूँ. खुद के लिए मैं बहुत कंसर्न हूँ. दिस इज नॉट सेल्फिश, दिस इज सेल्फ केयर. उतना जितना मैं खुद से प्यार करती हूँ उतना ही मैं अपने लव्ड वन से भी प्यार करती हूँ. उनके लिए मैं उजाड़ करके देती हूँ, बट मैं खुद को भी प्रायोरिटी में रखती हूँ.
तो उस टाइम मुझे खुद को बचाना था और मुझे खुद को सिचुएशन से निकालना था, और मुझे उस खराब सिचुएशन में पड़े रहना नहीं था। तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना था, और इससे मैं कनेक्टेड महसूस करी, क्योंकि मैं शांभवी दी से बहुत हेल्प मिला है। मैंने उनको मैसेज भी किया था कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ मुझे मदद करो, मैं इस सिचुएशन से फंसी हूँ। तो उन्होंने शायद कुछ हीलिंग की होगी, मुझे हीलिंग महसूस हुई। मैं इंस्टेंटली एक दिन के अंदर बहुत ताकत महसूस करी थी, एंड ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मैंने उसके बाद में क्रिस्टल्स लिए उनसे 5 तरीके, मतलब 4 तरीके के क्रिस्टल्स मैंने बुक किया। उन्होंने एक मुझे गिफ्ट में भेजा था बर्थडे में, जो मेरा खुद का मैनिफेस्टेशन भी था। सो मेरा वो साल बहुत ही मिरेकलस रहा। तो जाप आपको मुंह से करना है कि हाथ में वो माला जाप से करना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। कोई बोलता है कि आपको पाप लगेगा, उस पाप का भय से डर के आपको कुछ और प्रोसेस फॉलो करना है कि उसी में चलना है, वो आपका चॉइस है। मुझे बहुत कोई मतलब एक टाइम पे बोलता है, अभी तो कोई नहीं बोलता, मतलब मेरे जान पहचान जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए या कोई छोटा छोटा कभी कभी कमेंट कर देता था कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। मैं कभी नहीं सुनी, मैं सिर्फ अपना दिल का सुनती हूँ। वैसा ही आप करो, जो आपको ठीक लगे वही करो। आपको किसी का सुन के चलना है, अगर अपना दिल का सुनना है, वट एवर यू फील लाइक यू डू, बट डू डिवोशनल सर्विस। इतना मैं ज़रूर बताऊंगी, डिवोशनल सर्विस करो, स्पिरिचुअलिटी करो, अपने हिसाब से करो, रूल्स को उस तरीके से मेंटेन करो ना करो, बट चैंटिंग्स करो। इसी से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, अपनी ज़िंदगी की समस्या को दूर कर सकते हो। इतना मैं बताऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। यहीं तक था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।